जय हिंद भाइयों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी फिट हो गए और तगड़े होकर प्रिपरेशन कर रहे होगे सीपीओ 2024 की। अगर आप मुझे नहीं जानते तो माई सेल्फ सौरभ भदौरिया, आई एम सिलेक्टेड इन सीआरपीएफ सीपीओ 2023 with an all India rank of 989. Today I brought this video because from the past few days I have been getting many questions from my brothers and sisters preparing for CPO 2024 and one question was very common कि हमारा स्कोर जो है वो एक जगह स्टक हो गया है, we are unable to increase that score. So today's video is a solution to that problem just by following 5 simple steps in our daily life, and you will certainly be able to boost your score up to 12 to 15 marks. Let's begin. So these are our 5 steps. First is revision, second is mock, third is analysis, fourth is practice, and fifth is strategy. Let me elaborate every point for you. Let's talk about revision. रिविजन में हम क्या करते हैं, लास्ट के 1 मंथ में हम सोचते हैं ये भी नया पढ़ ले, वो भी नया पढ़ ले. डोंट डू दैट. डोंट ट्राई टू लर्न एनीथिंग न्यू इन लास्ट 1 month. Instead, I would suggest you to go for a numerous number of revisions of the syllabus that you have already read. Because लास्ट के 1 month में जो भी चीज आपने एक बार पढ़ी होगी, that is definitely gonna create confusion for you in the exam. और एक बार आपको confusion होना start हुआ, so you're gonna consume extra time in every question in your exam. So avoid confusion. Avoid learning anything new. Okay, because right now अगर आपके 120 to 130 भी स्कोर आ रहे हैं, that is more than enough कि आप उसी मैटर को जिसके बेसिस पे आप 130 स्कोर ला रहे हो, आप उसी के मल्टीपल रिविजन्स करेंगे, है ना. 100% श्योर कि आप उस रिविजन के बाद 145 to 150 डेफिनेटली स्कोर करोगे. सो ट्राई टू अवॉइड लर्निंग एनीथिंग न्यू जिसका आप कोई भी रिविजन नहीं कर सकते लास्ट के 1 month में. एंड कोशिश करिए कि एग्जाम से पहले आप एटलीस्ट 3 to 4 रिविजन्स अपने कंप्लीट सिलेबस के करके जाएं. Our next step is mocks. In mocks, I would suggest you to give as much number of mocks and PYQs as possible before the exam, because mocks helps you in 3 aspects. First of all, it gives you confidence that after giving numerous number of mocks, एग्जाम में आपको ये नहीं लगेगा कि आप पहली बार कोई एग्जाम दे रहे हो. सो यू वोंट फील दैट पीयर प्रेशर ऑफ एग्जाम, है ना. जितना कंफर्टेबली आप घर पर मॉक देते हो, उतना ही कंफर्टेबली आप अपना एग्जाम भी देकर आओगे. सेकेंड, इट हेल्प्स यू इन टाइम मैनेजमेंट दैट आफ्टर गिविंग ए मॉक्स यू विल सर्टेनली बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको किस सेक्शन में और किस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली कितना टाइम देना है. थर्ड, इट टेल्स यू अबाउट योर वीक टॉपिक्स. वो आपको आपके वीक टॉपिक्स बताता है कि आपके कौन से ऐसे टॉपिक्स है जहां पे आप स्कोर नहीं कर रहे हो, जिन पे आफ्टर वर्किंग आउट यू कैन सर्टेनली बी एबल टू बूस्ट योर स्कोर. लाइक टॉकिंग अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस इन सीपीओ 2020 मेंस, आई हैड 3 months जिसमें से मैंने 2.5 months सिर्फ कॉन्सेप्ट्स याद करने में निकाल दिए. एंड इन रेस्ट 15 days आई लाइक अटेम्प्टेड ओनली 7 to 8 mocks. एंड इन CPO 2023 mains, I had 42 to 45 days only, and in which starting के 10 to 12 days में मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़े, and rest 30 days में I just focused on my mocks and I tried to give like as much mocks as possible. And this time I gave 18 to 20 mocks. And see the difference. In CPO 2020 mains, I scored only 151 mark, and this time I scored 173. So the learning from this experience is कि अगर आप 6 से 7 मॉक लगा के जा रहे हैं, then you won't get any benefit from the mocks in any way. अगर आप if you really want to be benefited from the mocks, then I would tell you that you should at least attempt 15 or above mocks. Then and only then you will see the real benefit of mocks. For me, mocks are way more important than learning the concepts, because when you learn, you only learn. But when you give the mocks and PYQ, you practice and learn. Our next step is analysis, and this is the step where many of us commit a very big and a common mistake कि हम मॉक तो लगा लेते हैं बट उसके एनालिसिस पे कोई फोकस ही नहीं करते हैं. एनालिसिस करते भी हैं तो लाइक वी हार्डली गो इनटू द सॉल्यूशंस. हम सिर्फ आंसर देख के मूव ऑन कर जाते हैं कि बस ठीक है, आंसर देख लिया हर एक क्वेश्चन का एंड दैट्स इट. एंड बिकॉज ऑफ विच होता है क्या कि लाइक 4 या 5 दिन बाद वही सेम क्वेश्चन हमारे अगले मॉक में आता है या उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड पे एक दूसरा क्वेश्चन आता है, तो वी हार्डली नो द आंसर बिकॉज हम सॉल्यूशंस में गए ही नहीं थे. तो
मूविंग इनटू द सॉल्यूशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आंसर्स देखने के साथ साथ सॉल्यूशंस भी देखना है, और सिर्फ गलत क्वेश्चंस या लेफ्ट क्वेश्चंस का ही नहीं देखना, हर एक क्वेश्चन का आंसर और सॉल्यूशन देखना है कि इसका आंसर है तो क्यों है। एंड आफ्टर दिस ऑल्सो वी कमिट अ वेरी बिग मिस्टेक कि लाइक हम कभी भी फर्स्ट एनालिसिस के बाद सेकेंड एनालिसिस हम कभी करते ही नहीं है किसी भी मॉक का। हमने आज मॉक लगाया, उसका हमने एनालिसिस कर लिया, उसके बाद हम उस मॉक को कभी उठाकर देखते ही नहीं है, जबकि सेकेंड एनालिसिस ऑफ अ मॉक इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन द फर्स्ट एनालिसिस। क्योंकि एक बार एनालिसिस करने से ना ही आपको कॉन्सेप्ट याद होगा, ना ही आपको उस क्वेश्चन का आंसर याद होगा। जस्ट लाइक रिविजन, आपके एनालिसिस भी, हर एक सिंगल मॉक का एनालिसिस भी मल्टीपल टाइम्स होना चाहिए। अगर आप 3 या 4 बार नहीं कर सकते, इंश्योर इट एटलीस्ट 2 टाइम्स। 2 बार तो करके ही जाइए। एक एनालिसिस आपका तब होना चाहिए जब आप मॉक दे रहे हैं, एक एनालिसिस आपका, सेकेंड एनालिसिस जो मैं आपका है, वो आपके सारे मॉक्स का सेकेंड एनालिसिस आपके एग्जाम के 1 वीक पहले से स्टार्ट हो जाना चाहिए। Like this time in my CPO 2023, I planned that कि मैं एग्जाम के 1 वीक पहले से मॉक के एंड सेकेंड एनालिसिस स्टार्ट करूंगा। एंड मैंने हर दिन अपने 3 मॉक सोच के रखे थे कि मैं हर दिन 3 मॉक का सेकेंड एनालिसिस करूंगा। इफ यू आर लाइक नॉट हैविंग द इनफ अमाउंट ऑफ टाइम, लाइक देन डोंट गो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दोज क्वेश्चन जो आपने सही कर रखे हैं। एटलीस्ट गो फॉर दोज क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस के तो सॉल्यूशन देख ही लीजिए जो आपने गलत किए हैं या जो आपने छोड़े हैं। ओके, इफ यू आर नॉट हैविंग द लाइक इनफ अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, तो मैंने लास्ट के 1 वीक में हर दिन अपने मॉक्स के एनालिसिस किए हैं, हर दिन 3 मॉक्स के एनालिसिस किए हैं। एंड हुआ क्या कि मेरे उन्हीं मॉक में से 5 क्वेश्चन, लाइक मेरे एग्जाम के 1 दिन पहले भी मैं अपने 3 मॉक्स का एनालिसिस कर रहा था। मैंने कुछ नहीं किया उस दिन, सिर्फ एनालिसिस किया अपने मॉक्स का। और लास्ट डे मैं जिन 3 मॉक्स का एनालिसिस कर रहा था, उन्हीं 3 मॉक में से मेरे 5 क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में निकल के आए हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, एंटोनिम एंड सिनोनिम में, आइडियम एंड फ्रेजेस में। और अगर मुझे लगता है कि मैंने लास्ट डे एनालिसिस नहीं किया था उन 3 मॉक्स का, तो शायद ही मैं उनमें से 1-2 क्वेश्चन कर पाता। 5 मार्क्स तो मेरे उन क्वेश्चन में आते ही नहीं, जिसके वजह से मैं 173 के स्कोर तक पहुंच पाया। सो when we are not finishing our first analysis, or we are not going for the second analysis, somewhere we are diminishing the effectiveness of our mocks, है ना, कि वो मॉक हमें जितना फायदा पहुंचा सकते हैं हम उतना ले ही नहीं पा रहे हैं उनसे। So go, just like revision, go for the multiple analysis of our mocks. Our next step is practicing of weak topics, and this step is basically related to English, reasoning and maths. In GS, you don't know, you can't do anything, you can't practice anything, you know the answer or you don't know the answer. So here we commit the another mistake कि हम मॉक लगा लेते हैं बट उसके आंसर भी देख लेते हैं, उसके सॉल्यूशंस भी देख लेते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि हम सिर्फ देखते ही हैं, हम उसको कभी भी ऑन पेपर सॉल्व नहीं करते। हमने सॉल्यूशन देख लिया एंड वी जस्ट मूव ऑन। होता क्या है कि हम वो सॉल्यूशन को 1-2 दिन तक तो याद रखते हैं, बट उसके बाद इट वैनिशेस फ्रॉम आवर माइंड। अगर आपको किसी भी टॉपिक में, फॉर इंस्टेंस इंग्लिश है, आपको नरेशन के क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, क्लोज टेस्ट के आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू आंसर दो क्वेश्चंस करेक्टली, गो फॉर लाइक प्रैक्टिसिंग दोज क्वेश्चंस। आप गूगल उठाइए, गूगल पे नरेशन, क्लोज टेस्ट, जो भी आपके गलत हो रहे हैं, आप 1 दिन में उनके 50 to 60 क्वेश्चन सॉल्व करिए एंड सी द मैजिक। नेक्स्ट डे से आपके वो सारे जो टॉपिक्स थे जिन पे आप स्कोर नहीं कर पा रहे थे, वो आपके मॉक के स्कोर में ऐड ऑन होना स्टार्ट हो जाएंगे। हर दिन आपके 1 या 2 मार्क्स ऐड ऑन होते रहेंगे। लाइक टॉकिंग अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस इन CGL 2022 बिफोर दैट एग्जाम, मेरे को लाइक सर्कल के कुछ कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर नहीं थे, लाइक फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द 2 सर्कल, ये मुझे नहीं पता था उतने से। बट मैंने देखा कि अरे इनके आंसर्स जो है वो इतने शॉर्ट है कि मैं अगर मैं आज, मुझे पर्सनल फील हुआ कि मैं अगर आज इनको 10 से 15 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व कर लूँ, देन कल से शायद मेरे ये क्वेश्चन एड ऑन होते, मेरे स्कोर में एड ऑन हो जाएंगे। एंड हुआ वो, मैंने उस दिन उसके 15-16 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए एंड नेक्स्ट डे से वो मेरे स्कोर में एडिशनली 1 या 2 मार्क्स एड ऑन होना स्टार्ट हो गए थे। जो मेरा भी स्कोर जो था आपकी तरह स्टक हो गया था, वो 1 या 2 मार्क्स से बढ़ना स्टार्ट हो गया जब मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया अपने वीक टॉपिक्स पे। तो प्रैक्टिसिंग ऑन योर वीक टॉपिक्स इज वेरी वाइटल।
हम इस चीज को निगलेक्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि नहीं, हम बुक से नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और हमारा स्कोर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो चीज हमारे मॉक में, हमारे PYQs में हमारी वीकनेस बन के बाहर आ रही है, हम उस पर काम ही नहीं कर रहे हैं। हम कुछ भी इररिलेवेंट ही बुक से पढ़ रहे हैं, जो कि हमारी शायद मॉक्स में आ भी नहीं रहा है। तो अपने वीकनेस पे काम करिए। हर दिन अपने करिकुलम में 1 आवर, एटलीस्ट 1 आवर अपने वीक टॉपिक्स पे काम करने के लिए भी रखिए। एटलीस्ट उन टॉपिक्स को, आई एम नॉट सेइंग कि आप बड़े टॉपिक्स, बड़े कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए या उन पे काम करिए, जो कि जिनके लिए आपको मल्टीपल रिविजन्स लगेंगे, जो कि 1 मंथ में पॉसिबल नहीं है। बट ऐसे शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स या शॉर्ट टॉपिक्स जो कि आप 1 दिन में सीख सकते हैं या आधे दिन में सीख सकते हैं, उन पे आप डेफिनेटली काम करिए। अगर आप 160 से नीचे स्कोर कर रहे हैं तो हर मॉक में ऐसे 10 क्वेश्चन होते हैं जिनको आप 1 से 2 दिन में सीख सकते हैं। इट्स जस्ट दैट कि हम उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम उन पे काम करते ही नहीं हैं। जब आप 17-18 मॉक्स लगा के जाएंगे और हर एक मॉक में अपनी वीकनेस पे काम करेंगे, देन बिलीव मी, आपके रियल एग्जाम में आपके इन्हीं मॉक से या आपके इन्हीं वीक कॉन्सेप्ट्स पे सीधे सीधे 8 से 10 क्वेश्चन उठ के आएंगे। एंड देन आफ्टर सीइंग दोस क्वेश्चन इन योर एग्जाम, यू विल बी सो ग्लैड कि मैंने अपनी वीकनेस पे काम किया। Our last step is strategy. This is one of the most vital steps among all those 5 steps. We must devise a strategy for each and every exam. किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, पर्टिकुलरली किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, किस सेक्शन में मिनिमम स्कोर हमें कितना करना है फॉर सो दैट वी कैन रीच अवर डिजायर्ड स्कोर। हर दिन कितना, किस सब्जेक्ट को टाइम देना है। पर्सनली आई फील नो वन हैज अ परफेक्शन इन ऑल 4 सब्जेक्ट्स। तो किन 3 सब्जेक्ट को परफेक्ट करना है, किस एक सब्जेक्ट को एवरेज रखना है, ऑल दीज थिंग्स फॉल्स अंडर स्ट्रैटेजी। कैसे एग्जाम में टाइम बचाना है, फॉर एग्जाम्पल नंबरिंग द अल्फाबेट्स याद करना, लाइक A stands for 1, B stands for 2, Z stands for 26, स्क्वायर्स याद करना 30 तक, क्यूब याद करना 20 तक, कैलकुलेशन स्लो है तो एवरी डे 10 to 20 मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड के क्वेश्चन सॉल्व करना along with the stopwatch. All these things comes under strategy. If you are having a good strategy, believe me, there is no chance of failing in any exam. One last thing that I would like to say is, if you are having a good strategy, you might have a chance of winning the war even without the weapons. But if you are not having a good strategy, there is no chance of winning the war. So good luck for the exam. Do it well. Lage raho. This time you are having a very good opportunity of like bumper vacancies. So just go for it.